کو لگانا ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. عزیز طلبہ اور محترم شرفائے ذی احترام اساتذہ کرام، آج کی جو محفل ہے یہ 15 اگست کی جو تاریخ ہماری آزادی کی تاریخ ہے، اس کے منانے کے لیے ہم یہاں بیٹھے تھے. انیس سو سینتالیس میں آزاد ہوا اپنا ملک، اور اس کے بعد جو جد و جہد مسلمانوں کی رہی ہے وہ آپ نے سنا. بہت ہی شدید اختصار کے ساتھ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دی گئیں، لیکن دو چیزیں آپ ضرور خیال رکھیں جو موجودہ دور میں یہاں پر آپ دیکھنے کو پا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ کس قدر مسخ کی جا رہی ہے اور ان کے نشانات ختم کیے جا رہے ہیں. ان کی تاریخ کو تہوبالا کیا جا رہا ہے. جب کسی قوم کو مارنا ہو اور اس کو قتل کرنا ہو تو اس کی تاریخ ختم کر دیجیے، اور یہ کوشش چل رہی ہے. مسلمان ایک مردہ قوم سمجھی جا رہی ہے، جبکہ ہے نہیں، لیکن مردہ بنایا جا رہا ہے. 2019 میں وزیر اعظم سے شروع کی گئی جو ڈکشنری آف مارٹیئرس آف انڈیاز فریڈم اسٹرگل جو شروع کیا ہے انہوں نے، اس کے اندر جو مذکور کل شہداء ہیں تقریباً 30% مسلمان ہیں، لیکن یہ 1857 سے لے کر 1947 تک کے شہداء کا ذکر ہے. اس میں 30% پھر بھی مسلمان ہیں. اور یہ جو آزادی محیط ہے 200 سال پر، اس میں 117 سال جو مسلمان خود لڑے ہیں ان کا تذکرہ کسی نے آج تک نہیں کیا ہے. ان میں جو شہداء ہیں ان کا تذکرہ ہندوستان نے بھلا دیا ہے. وہ کام ہے آپ سب کا، ڈھونڈیں، تلاش کریں کس انداز میں ان کو یاد کیا جائے اور کیسے ان کی تاریخ کو دوبارہ زندہ کی جائے. وہ مدت 117 سال ہے. 90 سال میں ہندو اور مسلمان مل کر لڑے ہیں. وہیں سے تاریخ کو اجاگر کرتے ہیں اور اس میں اکثر علماء کا نام ہی ختم کر دیا جاتا ہے. صرف چند ایک کا نام لیا جاتا ہے جو بہت مشہور ہیں. آپ کو عبوری طور سے بھی جاننا چاہیے، بہت مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں. ترکوں کی آمد جو بر صغیر میں ہے وہ 11ویں صدی سے شروع ہے. 11ویں صدی کی سمجھیے وسط سے، اور تقریباً 500 سال ان کی حکومت رہی ہے. پھر اس کے بعد یہ ترک عام طور سے ایسا نہیں سمجھے یہ کہاں کے، یہ ترک مطلب جو ہے تاجکستان کے لوگ رہنے والے تھے، جو ایک طرح سے سمجھ لیجیے کہ خانہ بدوش نسلی قوم تھی. ان کا تعلق آپس میں تال میل بہت تھا. بہرحال انہوں نے یہاں آ کر اپنی ریاستیں قائم کی. پھر غزنوی ریاستیں قائم ہوئیں، اس کے بعد غوری آئے، اور اس کے بعد ترک غلام بھی یہاں پر آئے. اس کے بعد مغلیہ دور کا آغاز ہوا ہے، جس کی پہلی کڑی تھے بابر، ظہیر الدین، اور آخری سلسلہ بہادر شاہ ظفر تھے، اور یہیں پر ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یہ صرف الفاظ ہے، بس تاریخ نہیں ہے. صرف الفاظ سے
कुछ चंद मिनट के लिए बयान किया। 665 साल है जो मुसलमानों की हुकूमत यहाँ कायम रही। किस अंदाज में कायम रही उसको बयान नहीं किया जा सकता है, लेकिन मुग़लों से पहले, इनसे पहले जो यहाँ की हुकूमत थी उसको बारे में आज तक आपने जाना नहीं। जो हालत यहाँ ब्राह्मण हुकूमत या इस तरह से ठाकुरों की हुकूमत, राजाओं और महाराजाओं की जो हुकूमत थी उस दौर में किस तरह से था पता आपको? कि अगर एक कोई राजा चलता, उसके सामने कोई चमार खड़ा हो जाता तो उसकी सुरीन काट लेते। चारपाई पर बैठने की इजाज़त नहीं थी, पूरा कपड़ा पहनने नहीं देते थे। जिसको बुला लिया नहीं आया, दूसरे दिन उसका खात्मा हो जाता था। मजहबी तौर पर आप चल नहीं सकते थे। ये दौर खतरनाक दौर था जिसमें इन्होंने यहाँ के लोगों पर, जनता पर बेतहाशा जुल्म ढाए थे। फिर जब मुगली हुकूमत और ये तुर्की हुकूमत और इन लोगों की हुकूमत आई तो इन्होंने इंसाफ दिया, इंसाफ के साथ जीने का हक दिया और बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ इनका असर इन पर पड़ा। इससे मुतासिर होकर बहुत सारे लोग मुसलमान भी हुए, इसमें ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे मुसलमान हुए। और कहते हैं 712 में मुसलमान मुजाहिदीन सिंध तक आ चुके थे, लेकिन उनका कोई असर यहाँ पर नहीं पाया गया। तो ये इनकी हुकूमत थी, लोग तंग थे और किस कदर ये आपस में लड़ते भिड़ते और मार पीट काट। अशोक राजा के बारे में आपने सुना होगा, कितना खून की नदियाँ उसने बहा दी थी। तो ये थी हिंदुस्तानी हुकूमत, जहाँ पर ये आज राजा बने हुए हैं ना, ये सारी चीज़ें इनकी याद रखनी चाहिए। तो उसके बाद देखिए, फिर इनके बाद यहाँ पर जो अंग्रेज आए ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए से, ये पहले जहांगीर के दौर में आए सूरत में, फिर औरंगज़ेब ने इनको मार भगाया था। फिर दोबारा आए ये कलकत्ता में, कलकत्ता से फिर ये धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो गए। जब ये काबिज हो गए तो फिर उसके बाद उलमा की लड़ाई शुरू होती है और फिर 1740 से लेकर 1857 तक जो 117 साल है उसमें बड़े बड़े उलमा, जिसको हम कहते हैं शाह वलीउल्लाह से शुरुआत होती है और 1803 में शाह अब्दुल अजीज़ का फतवा आता है। और फिर बंगाल में नवाब सिराजुद्दीन की लड़ाई और फिर बहरहाल उनके सिपह सालार की गद्दारी कह लीजिए, इसी तरह के कुछ सुल्तान के कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आए। बहरहाल ये लड़ते भिड़ते आखिरकार अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर ही लिया। लेकिन उस दौरान उन्होंने इतना जुल्म मुसलमानों पर नहीं किया था जितना कि इन 70 सालों में मुसलमानों में हुआ है, याद रखिएगा। अब कहते हैं जो इन्होंने रास्ता खोला है मुसलमानों के साथ, अगरचे मुसलमान और बंगाल में सिर्फ 1/3 मुसलमानों की जान तहे ज़मीन डाल दिया है इन्होंने, बंगाल की 1/3। इसी तरह से जौनपुर, ये उत्तर प्रदेश में जौनपुर पड़ता है, सिर्फ वहीं पर 52,000 उलमा मारे गए हैं। और ये दिल्ली दरवाज़ा से लेकर पेशावर तक जीटी रोड पर दोनों तरफ जो दरख्त थे, हर दरख्त पर 2 या 3 लाशें लटका दी थी। इन लोगों ने इतना मारा है। एक अंग्रेज ने लिखा है कि जब इंग्लैंड से फोन आया कि टोपी दाढ़ी देख करके फौरन गोली मार दो, तो उस वक्त वही गदर का टाइम था। फिर किसी ने किसी को नहीं पूछा कौन है, बस टोपी दाढ़ी देखते ही गोली मार दी। कितने अवाम को यहाँ पर ख़त्म किया है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ की ज़मीन मुसलमानों के खून से रंगी पड़ी हुई है और हमारे बुजुर्गान यहाँ पर मदफून हैं, उनकी जानें यहाँ पर हैं। तो इस तरह से बहुत कुछ है, यहाँ पर लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ गंवा दी हैं और ख़त्म कर दी हैं। और आज हमें पर ये उंगली उठाई जा रही कि हम हुब्बे वतन नहीं, या मुहिब्बे वतन नहीं, या हम इसके वफ़ादार नहीं। लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी अगर हम देखते हैं तो वो किस कदर दागदार है। तुम क्या जानो हुकूमत किसको कहते हैं, ये मुसलमानों ने सिखाया है। आकर के यहाँ कुछ मुसलमानों ने इनको दिया है। तलाक का लफ्ज़ इनके यहाँ था ही नहीं, ये मुसलमानों से लिया है और आज तलाक पर उंगली उठा रहे। इनके यहाँ कहाँ तलाक का मामला था? जिसके साथ जिसको ब्याह दिया उसी के साथ उसके चिता में उसको जला दिया जाता था। ये इनकी हालत थी।
ये मुसलमानों ने इनको बचाया, मुग़लों ने इस कानून को ख़त्म किया है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ें और समझें। अब रहा मुसलमान बच्चों की यहाँ ज़िंदगी के बारे में, जो लोग कहते हैं कि आप पढ़ो, क्या पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे? ज़रूरत है आज अपने अरबी मदारिस, चाहे वो कई हज़ार, जैसे नाज़िम साहब ने जिक्र किया, इतने हज़ार हैं, लेकिन किसी भी मदरसे में इस तालीम को साइंस और जदीद तालीम से मुज़य्यन नहीं किया गया। हमारा ये शरई उलूम बरकरार रहे, इसके साथ साथ दूसरी और असर हाजिर के तालीम से मुज़य्यन करना पड़ेगा, वरना इस तरह से अपाहिज लोग पैदा होंगे, अपाहिज लोग पैदा होंगे, इनका कोई वक़ार मजमे में नहीं होगा, कोई काम नहीं कर सकेंगे, जिस मैदान में जाएंगे अपाहिज नजर आएंगे। तो ज़रूरत है आपको, सिर्फ अरबी ही से आपका काम नहीं चलेगा, आपको इंग्लिश भी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, साइंस भी होना चाहिए। हमें डॉक्टर और इंजीनियर की भी ज़रूरत है, हर मैदान में होने चाहिए। यहाँ से पढ़कर सिर्फ आपने उर्दू और अरबी में पीएचडी कर लिया तो उससे क्या हासिल होगा? उसे क्या हासिल होगा, मुझे बताओ? कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ज़रूरत है हम तलबा और तमाम दुनिया के मदारिस के तलबा को कि वो मुज़य्यन हो, और ज़रूरत है आज हमें इस तालीम को असरी उलूम के साथ हम आहंग करने की। ऐसा नहीं है अब 8 साल 10 साल आप लगाने के बाद दूसरी तालीम में कैसे जा सकोगे, इसी के साथ इसको रखना पड़ेगा, तब जा कर के आप एक उम्दा और पेचीदा और हर तरह से आप तैयार होंगे। कौन कहता है कि ये कमज़ोर है? इनके साथ अगर यही तालीम का निसाब मुतय्यन कर दिया जाए और फालतू आलतू किताबें निकाल कर बेहतरीन निसाब रखा जाए, जो हमारी इस्लामी बुनियादी किताबों के साथ साइंस और हिसाब रखा जाए, तो कितना उम्दा होगा। ये पूरी दुनिया में तलबा छा जाएंगे, हर मैदान के लोग इनको बुलाएंगे कि आओ हमारे यहाँ, हमें ज़रूरत है आपकी। वो इस तरह से क्या कहा जा सकता है, ये सारी बातें। तो बहरहाल ये तारीखी चीज़ें जो हमने बयान की है, आप इसको समझें और गौर करें। आप में कमी नहीं है, हमारी तरबियत में कमी है, तालीम में कमी है। आप जिस तरह से हम संवारेंगे आपको, आप उसी तरह तैयार होंगे, लेकिन रहा मुरब्बी की कमी है। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन मुरब्बी बनाए। हम असातिज़े किराम और नाज़िम और दूसरे मदारिस को भी ज़रूरत है हम आहंग करने की। बहरहाल ये थोड़ी सी मुख्तसर सी बातें आपके सहरा। और रहा उलमा की कितनी जाने गई हैं, आज तक किसी ने सही अंदाज़ा नहीं लगाया है और ना लगाया जा सकता है, बस यूं ही इसको समेट दिया जाता है। और ऐसा कुछ नहीं है, बुलडोज़र उस वक्त भी चला था और आज भी चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, क्या कहता है, वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम लिबअदिन लफ़सदतिल अर्द वलकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला हुकूमतें तब्दील करता है, यके बाद दीगरे लाता है। न मुग़लों ने समझा था कि हमारी हुकूमत पर ज़वाल होगा, और न फ़िरऔन ने जाना था कि हम पर कभी ज़वाल आएगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला क्योंकि बड़ा रहीम व करीम है, वो समझता है कब किसको सज़ा देनी है और कब किसको बरकरार रखना है। वो अल्लाह तआला यके बाद दीगरे को हटाता है ताकि इसका एक निज़ाम चलता रहे। ये अल्लाह की सुन्नत है। ये न कोई सोचे कि आज हम काबिज़ हैं कल होंगे। गंगा का धारा कब किस तरफ बदल जाए वो अल्लाह ही को मालूम है। तो बहुत ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप और हम और सारे लोग उसके लिए तैयार होंगे और रास्ता हमवार होगा। ऐसा नहीं है, ये जबर और जुल्म की जब इंतहा होती है तो जाहिर बात है मूसा भी कोई पैदा होता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक इनायत फरमाए, और बहुत ज़्यादा मायूसी आप अपने ऊपर न लें। ये सबसे बड़ा समझ लीजिए कि एक तरह से समझ लीजिए कि क्या कहें, हमारे फेल होने की सबसे बड़ी बुनियाद चीज़ है मायूसी। अपने आप को हिम्मत पस्त न करें, बुलंद रखें। जहाँ जिस तरह ज़रूरत पड़ेगी उस तरह से हम पेश आएंगे। अल्लाह ताला हम सबको कायम और दायम रखे, और अल्लाह ताला इन मदारिस को कायम और दायम रखे, मुसलमानों को कायम दायम रखे। जो नुकसान हुआ उसको याद रखें, सिर्फ याद के हद तक, लेकिन अपने आप को उस पर देख करके पछताएं नहीं, आगे बढ़ें। अल्लाह ताला हम सब के साथ होगा। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए और तरोताज़ा रखे
اور آنے والی نسلیں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہتر بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔